ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमने चूज़ किया है आज, वो है ज्योग्राफी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन पार्ट 2। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको आप इजीली देख सकते हैं। तो लेट्स सी, there are some topics we are study about it. Let's number 1, India and the world. Next, its neighboring countries. There are two main topics we are going to discuss on this point. Let's see. India is located in the center of the world between East and the West Asia. Let's see on the map. The India lies between the ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, मीन्स पूरब और पश्चिम एशिया के बीच में भारत लाई करता है। इन द एशियन कॉन्टिनेंट इंडिया लाइज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इट नोन इंडिया इज नोन आल्सो द कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इंडिया द नेक्स्ट नेम इज आल्सो नोन एज द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री and is also the subcontinent known its. Let's see the routes across the Indian Ocean which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to India. It means India connect with the Europe by the sea route in the Arabian Sea, and India connect the sea route by the Bay of Bengal in the East Asia. East Asia's countries and the Europe countries India connect by the sea routes, like Arabian Sea. In the Arabian Sea by the Bay of the Persian Gulf, by the Persian Gulf and the Mediterranean Sea, and here in the Bay of Bengal. The Deccan Peninsula helps India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. The Peninsula India connect with the Europe from the West Asia by the western coast, clear, and Southeast and East Asia from the eastern coast, and East Asia's country connect with the eastern coast. I mean कि विशाखापत्तनम, इधर गोवा एंड द कोंकण कोस्ट, गुजरात एंड द महाराष्ट्र. देयर आर सम sea ports are situated on the western coast and some sea port situated on the eastern coast which connect the East Asia, and these western coast connect the West Asia, Europe and the Africa continents. Let's see. The ocean which is south of India given name Indian Ocean, as the other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. Indian Ocean, the name of the India, on the name of the India is known as the Indian Ocean. The land routes of India are much older. The land routes of India are much older than sea routes. यानी भारत का जो लैंड रूट है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, थ्रू द पासेज बिटवीन द हिल्स और बिटवीन द माउंटेन्स इज नोन एज द पासेज. इट इज द ओल्डर देन द सी रूट. सी रूट फॉर द इंडिया वाज इन्वेंट बाय द वास्को डी गामा in 1498. Clear?
यानी भारत के लिए जो सी रूट की खोज की थी सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा ने की थी। हु वाज द नेविगेटर ऑफ द पुर्तगीज नेविगेटर था वास्को डिगामा। एंशियंट ट्रेवलर्स एज ओशन लिमिटेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द लैंड रूट हेल्प्ड इंडिया इन द एक्सचेंज of ideas and commodities since ancient times. The land route share the ideas of the India in the ancient times. India have propagated the ideas of the Upanishad and the Ramayana, the story of Panchant, the Indian numerals and the decimal system, as well as given spices, muslin and other merchandise to different countries. It means India spread their ideas by the sea route or by the land routes in the whole world, like Upanishad and Ramayana and story of the Panchant. Here some question for you. Who Panchtantra written by? Please tell the name in the comment box. Panchtantra was written by the writer's name. Please tell me in the comment box. The Indian numerals and the decimal system. Who invent the decimal system? Pi and in Indian scientist. भारतीय वैज्ञानिक ऐसे भारतीय गणितज्ञ का नाम आपको बताना है जिन्होंने डेसिमल सिस्टम को इन्वेंट किया था इंडिया में, और यहीं से भारत से ही डेसिमल सिस्टम स्प्रेड हुआ कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज में। आप जिस नंबर को हम यूज करते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इट्स नंबर नेम इज आल्सो नोन एज द इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। क्या कहते हैं उसको? इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। यानी कि वो जो नंबर नेम है वो पहले भारत में अरबी आए, उन्होंने सीखा और अरबी इस नंबर को कहाँ पहुंचा दिए? यूरोप में पहुंचा दिए। तो इंडो अरेबिक न्यूमरल्स इसको हम कहते हैं। एंड इस और क्या क्या चीज़ें होती थी, लेट्स सी, और क्या क्या चीज़ें हम लोग क्या करते थे अपने व्यापार में। तो सबसे पहले मसालों का व्यापार होता था। मुस्लिन मीन्स मलमल, रेशम एंड अदर मर्चेंटाइड्स, और इसके साथ अन्य खाद्य सामग्री, व्यापारिक वस्तुएं टू डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों में भारत के इस लैंड रूट से या इस सी रूट से जाते थे। लैंड रूट्स आप देखो, चाइना से चल करके वो जो इसको हम सिल्क रूट कहते हैं, चाइना से होते हुए भारत, पाकिस्तान तो था नहीं इस समय, चाइना से यार समरकंद और अफगानिस्तान होते हुए ये जा करके यूरोप में मेडिटेरेनियन सी से मिल करके पूरे यूरोप में जाता था। इसको हमने शायद किसी चैप्टर में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं किसी वीडियो में होगा, आई थिंक 10th वाले क्लास में वीडियो में है। इट नाइबरिंग कंट्रीज, अब हाउ मेनी नाइबरिंग कंट्रीज अटैच बाय इंडियन बाउंड्री लाइन्स? तो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज लाइज इन इंडिया। तो कौन कौन सी नाइबरिंग कंट्री हैं भारत की देखते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो जोन है ये नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में भारत में कौन कौन से? पाकिस्तान एंड इन अफगानिस्तान। इन द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन द नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं, चाइना है, भूटान है एंड नेपाल। देयर आर 3 कंट्रीज लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, चाइना, भूटान एंड नेपाल। एंड देयर आर 2 कंट्रीज इन नॉर्थ वेस्ट, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, इन द अरेबियन सी, मालदीव इज आल्सो neighboring country of the India. In the south, Sri Lanka is also neighboring country of the India. पाक स्ट्रीट एंड गल्फ मन्नार, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पाक स्ट्रीट एंड गल्फ मन्नार वाज डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान। पाक स्ट्रीट एंड गल्फ मन्नार अ वाटर बॉडी डिवाइडेड इंडिया टू श्रीलंका डिवाइडेड
द गल्फ मन्नार पार्क स्ट्रीट, एंड इन western and the in eastern zone Bangladesh and Myanmar. In the east म्यांमार एंड बांग्लादेश। ईस्ट में कौन कौन से दो देश आते हैं? बांग्लादेश एंड म्यांमार। देन साउथ श्रीलंका एंड द मालदीव, साउथ में मालदीव है एंड श्रीलंका है। तो देयर आर सम नाइबरिंग कंट्री, इट मीन्स देयर आर 9 नाइबरिंग कंट्रीज इंडिया शेयर देयर बाउंड्रीज, यानी ये जो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, there are 9 countries India share their boundary lines. Some important facts about the India, नोट करके आप इसको लिख लेंगे ऐसे। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ लास्ट में पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट जो लैटिट्यूड गया है उसी पर है। भारत का सबसे जो लास्ट लैटिट्यूड गया है, जो भारत का एक्सटेंशन है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो उस 8 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है। गॉट सबमर्ज, डूब गया था, कब? अंडर द वाटर इन 2004 द सुनामी, 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था, सबमर्ज हो गया, डूब गया। कहाँ पे? इस समुद्र में, यानी इंडियन ओशन में। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, जब स्वेज कैनाल बन गई 1869 में, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। स्वेज कैनाल के बन जाने के बाद, अब सोचो इस चीज़ को कि जब स्वेज कैनाल बन गया तो भारत और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया, कम हो गया यार। नेक्स्ट क्या है? बिफोर 1947 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, आज़ादी से पहले भारत में 2 तरीके के स्टेट हुआ करते थे, एक था प्रिंसली स्टेट्स और एक था प्रोविंस। तो व्हाट इज प्रोविंस? वेयर रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो ऐसे सरकारें थीं जिनको हम प्रोविंस बोलते थे, वो किसके द्वारा रूल्ड होती थी? तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा रूल्ड होती थी, जिनको वायसराय अपॉइंट करता था, अपॉइंटेड बाय द वायसराय। ब्रिटिश ऑफिशियल्स, प्रोविंसेस क्या होती थी? वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द वायसराय। हु वाज द वायसराय? लास्ट वायसराय ऑफ द इंडिया इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। क्लियर? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देयर आर 2 वायसरायज, 1 इंडियन वायसराय एंड नेक्स्ट ब्रिटिश वायसराय। तो आपको ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का नाम बताना है जो उस समय भारत में था जब भारत आज़ाद हुआ था। प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, यानी जो प्रिंसली स्टेट होते थे वे किसके द्वारा शासित होते थे? वे वहाँ के लोकल राजाओं के द्वारा उन पर शासन किया जाता था, तो वो थे प्रिंसली स्टेट्स। तो देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू कि who was the last viceroy of the independent India? Who was the last viceroy or governor general of the independent India? There are some trick how can learn the neighboring country of the India. Let's see. आइए देखते हैं कि एक फार्मूले के तहत, एक सूत्र के तहत कैसे हम भारत के पड़ोसी देशों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। तो एक मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता रहा हूँ, सूत्र जिसको कहते हैं, ट्रिक यानी जुगाड़। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत जुगाड़ों का देश कहलाता है। जुगाड़ों का देश, जुगाड़ों का देश। जुगाड़ सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है? सिंपल इंडिया में, और किसी भी वर्ल्ड में जुगाड़ जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में क्या चलता है? जुगाड़। कहीं जाते हैं ना तो आप क्या कहते हैं? कोनो जुगाड़ हो तो बताओ यार, ये काम कराओ एक, है ना। तो लेट्स सी, तो हम जुगाड़ से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से भारत के नाइबरिंग कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, फिर कैन,
CAN कैन, MP कैन, और क्या हो सकता है, MBB, yes, there are neighboring countries of India's formula. Let's see. M for आप मालदीव भी लिख सकते हैं, तो हम इधर से चलते हैं. M for मालदीव, मालदीव लिख लो भाई. क्या नाम इसका, मालदीव जी, हम मालदीव लिख लेते हैं. M इक्वल टू मालदीव, माल. P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान. C फॉर चाइना, चाइना. एंड A फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान. N फॉर नेपाल, नेपाल. M फॉर म्यांमार, बर्मा जिसको कहते हैं. B फॉर बांग्लादेश, क्लियर, B फॉर बांग्लादेश. एंड B फॉर भूटान, भूटान. एंड S फॉर श्रीलंका. तो here some important tricks for the neighboring countries of the India. What is MP कैन MBBS, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी डॉक्टर बन सकता है. MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन सकता है क्या डॉक्टर, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. तो ये इट इज़ अ फार्मूला फॉर द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया. अब देखते हैं कौन कौन सी नाइबरिंग कंट्री है. तो मालदीव, मालदीव ये यहाँ पर मालदीव है. पाकिस्तान, लेट्स इट्स पाकिस्तान. चाइना, इट इज़ चाइना. देन अफगानिस्तान, इट इज़ अफगानिस्तान. नेपाल, या इट इज़ नेपाल. एंड म्यांमार, इट इज़ म्यांमार. म्यांमार कहाँ पे, तो म्यांमार ईस्ट में पड़ता है भाई, इंडिया के ईस्ट में म्यांमार है. एंड बांग्लादेश, ये भी ईस्ट में है. भूटान, ये क्या है भाई, भूटान, भूटान लिख लीजिए. भूटान भी क्या है, नॉर्थ में है ये. एंड श्रीलंका साउथ में है. तो ये कुछ टॉप जुगाड़ हैं, जिस जुगाड़ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे भारत की नाइबरिंग कंट्री को हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. पढ़ना देखिए एक सिस्टम है. उस सिस्टम से जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसे सब्जेक्ट को, खास करके सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को, तो क्या होगा, ऐसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को जब आप अकॉर्डिंग टू द ट्रिक पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द जुगाड़ पढ़ेंगे, तो आपको इट इज वेरी सिंपल यार, बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि कैसे इसको लर्न करें. तो हाउ मेनी नाइबरिंग कंट्रीज, देयर आर 9 नाइबरिंग कंट्रीज. तो नॉर्थ में कौन है, तो नॉर्थ में है चाइना, भूटान एंड नेपाल. नॉर्थ वेस्ट में कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. एंड ईस्ट में कौन है, तो बांग्लादेश, म्यांमार. साउथ में श्रीलंका एंड द मालदीव. तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक, इंडिया साइज एंड लोकेशन. फर्स्ट चैप्टर हैड बीन क्लोज्ड, क्लास 9th सोशल साइंस ज्योग्राफी. तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग. एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.